ने एक नई शुरुआत की है अपने नए प्रोजेक्ट एपेक्स ऑरा के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये आज के डेट में हर खरीदार के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। अब मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप एक प्रॉपर्टी को लेने निकलते हैं तो इस मार्केट में प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन एक डेवलपिंग मार्केट है और इसमें मैक्सिमम बिल्डर्स आज के डेट में अपने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आप या मैं एक वही प्रॉपर्टी लेते हैं जहां पे हमारी मैक्सिमम जरूरतें पूरी होती हैं और यही उस प्रोजेक्ट की यूएसपी बन जाती है। तो इस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है, आपको ये प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहिए? अगर आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एपेक्स ऑरा मैं आपको क्यों दे रहा हूं, आपको ये क्यों लेना चाहिए, मैं उसका आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको मैं प्रॉपर्टी की डिटेल भी बताऊंगा साथ ही साथ, और उसमें आपको प्रॉपर्टी से अपडेट हो सकते हैं। जैसा कि एपेक्स ऑरा ये जो प्रोजेक्ट है ये 9 एकड़ की जमीन पर है। 9 एकड़ की जमीन पर आज के डेट में जो टावर्स, नंबर ऑफ टावर्स जो यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं वो है 11। दैट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एपेक्स ऑरा is been divided in 2 parts as phase 1 and phase 2. Tower number A, B, C, D, E and F. These towers comes in phase 1 that is been expected to be delivered within a span of 1.5 years only. Now the remaining towers from G, H, I, J, these are the upcoming towers that shall be designed exclusively from Apex with their own taste. Reason being, if you do have a visit of this particular property, you will find that phase 1 is having an entry lobby of single story. But as the name suggests, the extreme quality of Apex, they have made some changes in the previous plans. What they have done, as an entry lobby, they have designed it double height because this is a trend. That's the people really do like at today's infrastructure because it gets you a warm entry feeling when you are entering inside a tower. So it's a totally double height entry particularly from G, H, I and J. These 4 towers are having exclusive entry. Plus the best part of this particular property, the whole project is a podium based property. Now what's the podium based property? When we are calling a certain property as a podium based property, then the vehicle movement on that particular podium is totally zero. So it's totally dedicated to the children and the senior citizens to enjoy their daily life. Whatever vehicle movement you will get on the ground floor only. That is only dedicated for vehicles only. There is a totally separation of a humankind and the technology. The phase which is going to be delivered and developed by Apex Group, starting from tower G, H and I, J, these 4 towers is getting its construction from the very new concept My1 construction. You know very well that at today's point of time, the previous deliveries from the builders with the contemporary technology, people are facing a huge crisis considering the only problem that is the seepage problem. But from the moment when builders has launched this particular technology, they have bought this particular technology in India, people are totally dwelling in this particular segment as My1 technology segment. Reason being, आपको पता होना चाहिए कि My1 में जो पाइपलाइंस की शाफ्ट है, वाटर पाइपलाइंस, जो टोटली डिफरेंट लोकेशन पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से My1 प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी सीपेज नहीं आती है। उसके अलावा इसको बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनाया जाता है क्योंकि इसमें ना ब्रिक की यूज होती है, ना इसमें प्लस्तर किया जाता है, इसमें पूरा आरसीसी कास्टेड होता है जिसमें सिर्फ आपने पीओपी या पुट्टी लगाने के बाद सीधा पेंट कर देना होता है। तो इसकी वजह से उसमें टाइम की कंजम्पशन बहुत बचती है और इसके अलावा इसकी क्वालिटी A1 आती है। लेकिन जो इससे भी बेहतर बात है कि आरसीसी कास्टेड होने की वजह से प्रॉपर्टी में स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज्यादा आती है और एक लिमिटेड विड्थ के साथ, एक छोटे विड्थ के साथ आरसीसी आपके यहाँ पे वॉल की जो विड्थ है वो थोड़ी लाइटर रहती है इन कंपैरिजन टू एनी बिग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर की लोडिंग बहुत कम रहती है और इसमें आपको कारपेट एरिया कंपैरेटिवली टू पुरानी जो आपके
डिजाइन्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा मिलती है। इसीलिए और इसी कारण की वजह से मैक्सिमम लोग जो है वो आज के डेट में माइवन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, अब आती है बारी इस प्रोजेक्ट को और डीपली समझने के लिए कि इसमें साइजेस क्या है। आज इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि एपेक्स ऑरा मार्केट के हर इंसान के लिए एक घर लेके आया है। डजेंट मैटर आपको छोटा साइज चाहिए या बड़ा साइज चाहिए, एपेक्स की खासियत है कि अगर आपको घर लेने की इच्छा है तो आप साइज की इच्छा रखिए, हम आपको साइज देंगे। यह है हमारा कहना सिर्फ एपेक्स के लिए। कारण हम लोग अपना साइज शुरू कर रहे हैं, सबसे छोटा साइज 972 स्क्वायर फीट 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट। आज एक छोटा परिवार हस्बैंड वाइफ के हिसाब से या कोई बैचलर, उसके हिसाब से एक बेहतरीन साइज है 972 स्क्वायर फीट। तो आज आप 972 स्क्वायर फीट की साइज से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको साइज का और डिमांड्स आती है, अगर उसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो 972 के बाद हमारा नेक्स्ट साइज आ जाता है 1140। 1140 के बाद फिर आपका साइज आएगा 1240। 1240 के बाद हमारा नेक्स्ट साइज जो आ जाता है वो आ जाता है आपका 1290, फिर 1295, फिर आपका आ जाता है 1382, फिर 1340 भी है, बीच में एक 1560 भी है, 1645 भी है और 1880 भी है। इतने सारे साइजेस हैं, पर मैंने आपको इसके सारे सेगमेंट इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैं सेगमेंट बताऊंगा तो सारी इंफॉर्मेशन इस कॉल पे ही खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपकी और मेरी एक मुलाकात हो, मैं आपको एक टेबल पर बैठ के इसके साइजों को दिखाऊं, आपको समझाऊं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़े, क्योंकि जब तक चीजें देखी नहीं जाएंगी तब तक समझी नहीं जाएंगी। आज मैं इस साइट पे खड़ा होकर आपको ये प्रोजेक्ट इसलिए बता रहा हूं कि आप साथ ही साथ ये भी देख पाए कि एपेक्स के नाम की वजह से यहाँ पे काम की शुरुआत हो चुकी है, गड्ढे पूरे खुद चुके हैं, बेसमेंट के हिसाब से आरसीसी पीसीसी कंपनी ने कर दी है। तो इसके हिसाब से आपको एक चीज की और क्लैरिटी आती है कि जो घर आप खरीदने जा रहे हैं उसमें काम की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज जो लीगैलिटीज है प्रॉपर्टी की, रेरा नंबर और जितने भी आप लीगैलिटीज बोलते हैं वो सारी ऑन ट्रैक है, क्योंकि विदाउट लीगैलिटीज आज की डेट में काम शुरू नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लीगैलिटीज कंप्लीट है, काम शुरू है, एपेक्स का ब्रांड नेम है, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सेगमेंट के लिए एक साइज डिजाइन किया हुआ है। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। जब आप एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो आपके मन में जब भी आप साइट विजिट पे आते हैं सबसे बड़ी खुशी होता है क्या होती है? यही आसपास की ठक ठक की आवाजें, यही माल का आना जाना, यही लेबर की मूवमेंट, और वही सब चीजें मैं दिखाने आपको लेके आया हूं इस साइट पर। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो ए से लेके जे तक जो हमारे टावर्स हैं, इसमें जो हाइट का जो कंपैरिजन है वो कोई टावर 23 और मैक्सिमम हाइट 25 फ्लोर तक है। तो 25 फ्लोर तक की लास्ट हाइट आती है हमारे इस प्रोजेक्ट की। और सबसे बड़ी बात, आज जो अभी हमने 2 टावर पोजीशन के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, हमारे जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, इसके साथ ही हमने हमारा कमर्शियल बना के तैयार कर दिया है। तो कमर्शियल भी हमारा तैयार हो रहा है साथ ही साथ, क्योंकि फैसिलिटी चाहिए होगी हमारे रहने वाले लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एपेक्स ऑरा के साथ आपको एक फीलिंग ये भी आएगी कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी रेडी टू मूव इन के 2 टावर्स हैं और फेज 1 जो हमको 1.5 साल में डिलीवर करना है फ्रॉम ए टू एफ, ए टावर से लेके एफ टावर तक, इसको हम 1.5 साल में हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो प्रोजेक्ट की यूएसपी आपको समझ में आ ही गई होगी कि प्रॉपर पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, डबल हाइट एंट्री लॉबीज हैं, माई वन कंस्ट्रक्शन है, एपेक्स का नाम है, हर तरह का साइज है, और जो सबसे बड़ी बात वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि आज मुझे एक चीज आप बताइए, जब आप एक कोई भी चीज इस नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओनली, अगर आप आज कोई सामान भी खरीदने जाते हैं, हर तरह का सामान हर तरह की कंपनियां बेच रही हैं, बहुत सारी कंपनियां मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आता है किसी एक कंपनी का। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोगों का सबसे बड़ा रिसर्च जो लगता है वो है वैल्यू फॉर मनी के लिए, क्योंकि इंसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अगर हम सेक्टर 1 के रेटों की बात करें, मुझे आज आपका होस्ट समीर मंडल, मुझे इस मार्केट में हो चुके हैं 15 साल। मैं कोई भी प्रॉपर्टी जब भी आपको बताऊंगा पूरे रिसर्च के साथ बताऊंगा। और आज जहां हम खड़े हैं सेक्टर 1 में, यहां का जो एवरेज रेट है वो है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, आप समझ रहे हैं बात को, 5,000 रुपए। और आज एपेक्स के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है, हमारी लॉन्चिंग हमने की है 4150 रुपए के रेट पे, जिसपे अभी फिलहाल के लिए
₹150 का इनॉग्रल डिस्काउंट है, यानी 4,000 रुपए का रेट। आप सोच रहे हैं, समझ सकते हैं इस बात को, आप मार्केट से ₹1,000 नीचे हैं विद कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान, जो सबसे बड़ी खासियत है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। क्यों? आप एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में आए हैं और प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में आप घर को इतनी आसानी से खरीद लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप घर खरीद चुके हैं। क्यों? अगर रेडी टू मूव इन होता, पूरा पैसा एक साथ जाता, आपकी ईएमआई सेम डे से शुरू हो जाती, आपको लगता है मैंने कुछ चीज खरीदी है। लेकिन हम आपका सपना इतने इजीली कंप्लीट करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। सीएलपी पेमेंट प्लान 4,000 रुपए के रेट के साथ और सिर्फ ₹210 का एडिशनल चार्जेस। एपेक्स के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है कि आपको एडिशनल चार्जेस का कोटा बहुत ही लिमिटेड मिलता है, बहुत ही लिमिटेड। कोई पीएलसीज के हिसाब से कोई भी आपको हिडन चार्जेस नहीं है। क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, सबों के हिसाब से हम लोग एडिशनल चार्जेस चार्ज नहीं करते हैं। सिर्फ ₹100 की पीएलसी लगती है, ₹85 की लीज रेंट और ₹25 का आईएफएमएस, जिसमें लीज रेंट और आईएफएमएस एक थर्ड पार्टी चार्जेस है, जिसमें बिल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो अगर आप देखा जाए तो बहुत ही लिक्विडिटी प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है और इसलिए इसको हम वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं। और आज शुरुआत में जो आपको फायदा मिलेगा एपेक्स के साथ जुड़ने का, वो है इनॉग्रल डिस्काउंट को अवेल करने का फायदा। कंपनी इसको किसी भी मोमेंट पे खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में ये प्रोडक्ट बहुत ही तेजी से बिक रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही बजट फ्रेंडली साइजेस हैं। तो यही खासियत है इस प्रोजेक्ट की, इसलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट पे इनवाइट करना चाहता हूं। अगर आपके पास एक घर खरीदने की इच्छा है तो एपेक्स को आपको घर देने की इच्छा है, ये चीज आपको समझनी है, वो भी वैल्यू फॉर मनी के साथ और विद कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान। आपको एक चीज और पता होगा कि मार्केट में एक प्लान जो पहले मार्केट में काफी बिल्डर्स ने चलाया, वो है सबवेंशन पेमेंट प्लान, जो कि आरबीआई ने खत्म कर दिया। वो एपेक्स ने भी खत्म कर दिया, लेकिन एपेक्स ने उस पर्टिकुलर कंफर्ट जोन को दोबारा रिवाइव किया है अपने कस्टमर्स के लिए। वो किस तरीके से किया मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मल पेमेंट प्लान विद नॉर्मल बैंकिंग स्टाइल। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है तो आप बैंक के हिसाब से अपना ओन कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं? 20%। इस केस में भी आपको 20% करना है, लेकिन एपेक्स ने इस पेमेंट प्लान को थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। 10-40-10-40। आप 10% दीजिए, 40% आप बैंक से लीजिए। बैंक से जो आप पैसा लेंगे उस पे जो भी ब्याज बनेगी वो बिल्डर ही बिया करेगा, वो भी कब तक? पोजीशन तक। फिर जब 50% कंप्लीट हो जाएगी, 60% की डिमांड आएगी, फिर वही 10% आप फिर अपने जेब से देंगे और फिर जो 40% एज पर द कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर बैंक से लेगा उस पर फिर से ब्याज जो है वो बिल्डर ही पे करेगा आपके बिहाफ पर। तो एपेक्स औरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, रीजन बीइंग फॉर इट्स लग्जरी स्टेटमेंट। जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो जो हमें अमेनिटीज मिलती हैं बिल्डर की तरफ से, वो कितनी लग्जरी है वो समझने वाली बात है। अभी मैं जहां आपके साथ खड़ा हूं, ये जो साइट आप देख रहे हो, ये क्लब हाउस का साइट है। इस क्लब हाउस की अगर हम बात करें तो ये 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, वो भी सिर्फ एक 9 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए। जैसा कि मैं आपको पेमेंट प्लान बता रहा था, इस मार्केट में इस वक्त ये पेमेंट प्लान किसी भी बिल्डर के पास नहीं है। वो है कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान विथ नो बर्डन, नो हैसल, नो मेंटल स्ट्रेस फॉर अ बायर। वो कैसे है? आज एपेक्स ग्रुप ने एक कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान लॉन्च किया है अपने बायर्स के लिए, जिसे हम कहते हैं 10-40-10-40। अब ये है क्या? अगर आप एक नॉर्मल सीएलपी पेमेंट प्लान में घर लेते तो एज अ ओन कंट्रीब्यूशन जो बैंकिंग प्रोसेस इंडिया में चलती है उसमें 20% आपको अपने जेब से देना होता है और 80% आप जो है लोन कराते हैं। अब एपेक्स ने क्या किया है, इसी चीज को अपना रोल प्ले करते हुए एक क्वालिटी बिल्डर होने की वजह से और सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए और एक बायर को कंफर्ट जोन देने के लिए इसको कस्टमाइज किया है। किस तरह से किया है? आज आप बुकिंग कराते हैं, आप 10% दीजिए। 10% देने के बाद आप अपनी लोन की प्रोफाइल दीजिए, लोन सैंक्शन कराइए, लोन की डिसबर्समेंट कराइए। लोन की डिसबर्समेंट कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से ही होनी है, जो हमारा सीएलपी पेमेंट प्लान है उसी हिसाब से बैंकर बिल्डर को पैसा देगा। लेकिन जो भी डिमांड रेज होंगी और जो बिल्डर की तरफ, जो बैंकर की तरफ से जो डिसबर्समेंट बिल्डर के पास आएगा, उस पर जो भी ब्याज बनेगी वो एपेक्स ही देगा। और कब तक देगा? पोजीशन तक देगा। तो कहने का मतलब 10% देने के बाद ब्याज वाली चीज या ईएमआई के तौर पे आपके जेब पे एक सिंगल पैनी का इंपैक्ट नहीं आता। तो अभी तक आपके जेब से क्या गया? अगर आपने 50 लाख का घर भी खरीदा सिर्फ 5 लाख रुपए गया सर।
आप समझिए इस बात को, आप 5 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं और विदाउट एनी बर्डन। फिर इसके बाद जब हमारा 50% एपेक्स ग्रुप का कंप्लीट हो जाएगा काम एज पर द पेमेंट प्लान, जिस दिन 60% की डिमांड आएगी उसमें फिर से आपको एक 10% और देना है। यानी कि अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी ली तो अब आप पहुंच गए 10 लाख में, लेकिन 60% की डिमांड पहुंचने के लिए साहब आपको लगेगा कम से कम 1 से 1.5 साल। आप समझ रहे हो, आप प्रॉपर्टी लेने बैठे हो और 10 लाख रुपए आपको 1.5 साल में देने पड़े विदाउट एनी बर्डन, और फिर उसके बाद टिल पोजीशन तक बची हुई डिमांड्स जो है जो बैंक से रिलीज होंगी उस पर भी ब्याज कंपनी ही भरेगी। तो आप समझ रहे हैं ये एक ऐसा पेमेंट प्लान है जिसमें जेब से 20% गया, 20% देने के लिए भी आपने 1.5 साल लगाए और उसके बाद भी आपने जेब से कोई EMI नहीं बियर की।